Yes. Yeah. So, namaskar and very good afternoon to all 40 women and all our dear friends joining us today. It gives me immense pleasure to welcome our special guest, our speaker today, Dr. Pooja Agrawal, Vice President of the Arya College. She's been a dear friend and a beautiful person inside, outside, and an eminent scholar. The qualifications are MBA, PhD, long list, and LLB. And as Vice President, she has taken Arya Group of Colleges to newer heights. She has been a guiding light to all her faculty and all her students. She has been awarded with lots and lots of awards. In fact, she has received prestigious award from our ex-Prime Minister, Mr. Manmohan Singh ji, and the present Vice President, Venkaiah Naidu ji, for her outstanding contribution in the field of education, especially promotion of young girl child in the field of education. So I welcome you, Pooja ji, to take us forward on this session. Sunita ji, and thank you for having me over on the 40 Women Wing platform. It's an honor for me to interact with you in this session of career options after 12. So, isme I have made a pleasure having you here. Thank you so much. I have prepared a small PPT, which I just run through quickly, if it is okay. Just before starting the PPT, I would like our audience, our guests today, to with them एक छोटा सा आपका जो journey रहा in Jaipur and with Arya colleges. So can you just elaborate on all of that a little bit? Thank you so much. I was born and brought up in Chandigarh, did my entire education from there. I am a law graduate. In fact, I am the university topper of Punjab University, 1999. Wow. And for that, I was felicitated by the Vice President of India as well. And after that, I got married, came to Jaipur, and my in-laws were very supportive. My husband himself is a medical doctor and a psychiatrist who has done his MD from America, Boston, and he came to set up this Arya Group of Colleges. We started our journey in the year 2000 in Jaipur by setting up the first private engineering college in Rajasthan at that time. The journey has been great too. Currently, we have 4 engineering colleges, 1 pharmacy college, 1 undergraduate, and 2 MBA programs that we are running alongside. So I got actively involved in Arya administrative work during these last 4-5 years only. And in this journey I have been learning throughout and have evolved as an individual, as a manager, as a motivational speaker. As a mentor. Role, I have been a TV host for Doordarshan during this tenure of mine. So it's been a beautiful journey, and now what I enjoy doing is basically motivating my own students achieve their dreams and get whatever they want in life. That's so good to hear. And it's been a pleasure having you with us as part of the 40 team. So shall we start with the... Yes, sure. The topic for today, which I would be addressing, is the career opportunities that are available after 10+2. As we all know, when a child enters the 10+2 grade, all the parents, the kids are under tremendous pressure. सब पे बहुत pressure होता है कि आगे जाकर अब कॉलेज में क्या सब्जेक्ट्स लेने चाहिए, किस कॉलेज में एडमिशन लेना चाहिए, जिससे हम लोग एक अच्छी एजुकेशन लेने के बाद एक सिक्योर फ्यूचर और एक फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट एंड एक कहते हैं रिकॉग्नाइज्ड डिग्री के साथ एक फ्यूचर को सिक्योर कर सके. And
every year we have lakhs of students with these worries, confusion, upset होते हैं, stress होता है. I think this is all because of the lack of information जो लोगों में नहीं होती है, या उनको ऑप्शन पता होते हैं, अवेयरनेस नहीं होती है, जिसकी वजह से डिसीजन लेना रिगार्डिंग द चॉइस ऑफ सब्जेक्ट्स एंड द चॉइस ऑफ इंस्टीट्यूशंस इज वेरी डिफिकल्ट. What is important that if you have to plan your फ्यूचर, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, आपको पहले पता हो कि आपका जो पैशन है वो कहाँ पर लाई करता है, और उसके बाद आप जो परस्यू करना चाह रहे हैं उसमें क्या कहते हैं, जो आप परस्यू करना चाह रहे हैं क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं, उन सारी ऑप्शंस की अंडरस्टैंडिंग होना, जिसको हम कहते हैं एडवांटेजेस क्या होंगे 5 साल बाद, डिसएडवांटेजेस क्या होंगे, ये सब हमें पता होना चाहिए. और जब वो अंडरस्टैंडिंग आती है, हम उस कोर्स को ज्वाइन करते हैं, हमारे को ये भी देखना होता है कि उस कोर्स को करने के बाद या उस यूनिवर्सिटी से पढ़ने के बाद हम लोग 5 years डाउन द लाइन या 10 years डाउन द लाइन क्या फ्यूचर अपने लिए होल्ड करते हैं. तो इफ आई वुड से 3 things that are very important is first is your passion. आप क्या करना चाहते हैं, क्या चीज है जो आपको अट्रैक्ट करती है, आपको एक्साइट करती है. दूसरा, जो आपको चीज एक्साइट करती है, सब्जेक्ट एक्साइट करता है, उससे रिलेटेड आपके पास क्या कोर्सेज अवेलेबल हैं. और तीसरा, कोर्सेज, बहुत से कोर्सेज ऐसे हैं जो बहुत ल्यूक्रेटिव हैं, फैंसी हैं, ग्लैमरस हैं, इजी हैं, जिनको बहुत जल्दी ऑप्ट करते हैं, बट लॉन्ग रन में वो एक बहुत हाईली कॉम्पिटिटिव कोर्सेज बन जाते हैं, तो और उनमें स्कोप जाकर उसकी वजह से कम हो जाता है. इसलिए ये बहुत जरूरी है कि हम इन सारी चीजों को देखें. देन एम्बिशन वर्सेस रियलिटी, कि भाई हम लोग चाहते हैं, हमारी अपनी लाइक्स हैं, प्रेफरेंसेस हैं, इतना इंटरनेट का वाइड स्प्रेड यूसेज है, बच्चों को इतनी सारी ऑप्शंस पता है, पीयर प्रेशर बहुत होता है जो साथ वाले कर रहे हैं, फैमिली प्रेशर्स हैं, और इन सब चीजों को देखते हुए बच्चा अपने फ्यूचर को लेकर, अपने कोर्स को लेकर एक इमेज बना लेता है कि मुझे यही करना है और ऐसे ही करना है. बट रियलिटी ये है कि उसके करियर को शेप करने में पेरेंट्स का भी बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है, क्योंकि पेरेंट्स आर द पीपल हु वांट द बेस्ट फॉर देयर चिल्ड्रन, and they have done everything possible to bring them to this level, and they want to secure their future further on. तो वो भी चाहते हैं कि बच्चा जो भी चूज करे उसमें ये बहुत जरूरी है कि वो ऐसा कोई कोर्स करे या ऐसा कोई प्रोफेशन चूज करे जिसमें उसके पास फाइनेंशियल सिक्योरिटी और ग्रोथ दोनों ही इंश्योर हो आगे जाकर. कन्वेंशनल थिंकिंग जो है ये है कि पहले कुछ सालों पहले तक पेरेंट्स ही बच्चों के प्रोफेशन को चूज करते थे, या घर में कोई बड़ा है, बड़ा ब्रदर है, कजन है, फ्रेंड है, फ्रेंड का भाई है, अपने कोई रिलेटिव्स हैं जो एक पर्टिकुलर प्रोफेशन में हैं, उनको देखकर लोग अपना प्रोफेशन बच्चे चूज करते थे. और जो देखा गया है, अगर हम फैक्ट्स एंड फिगर्स की बात करें, तो इंक्लिनेशन टुवर्ड्स द इंजीनियरिंग एंड द मेडिकल प्रोफेशन हैज बीन वेरी हाई इन द पास्ट. और ये इसलिए रहता है कि ये दोनों ही प्रोफेशनल कोर्सेज हैं, और इन प्रोफेशनल कोर्सेज को करने के बाद दी पॉसिबिलिटीज आर मैनी फोल्ड. जैसे बच्चे इंजीनियरिंग करने के बाद फॉरेन लैंड में जाना चाहते हैं और वहां पर जाकर जॉब्स करना चाहते हैं, एक्सप्लोर करना चाहते हैं, तो इन कोर्सेज के साथ ही इजी हो जाता है. मेडिकल में भी अगर अमेरिका में जाते हैं, यूएसएमएलई का एंट्रेंस देते हैं और वहां पर अपनी मास्टर्स परस्यू करते हैं, और वहां पर वो उस प्रोफेशन को परस्यू कर सकते हैं. दूसरा जो रीजन रहता है इन दो कोर्सेज को चूज करने का अभी तक, वो ये है कि बहुत से लोग हमारे देश में गवर्नमेंट जॉब्स के लिए एस्पायर करते हैं. तो अगर हमें गवर्नमेंट जॉब्स चाहिए तो फिर उसमें भी ये दोनों स्ट्रीम्स बहुत हेल्पफुल होती हैं. अब बच्चे के पास बहुत कंफ्यूजन होती है, क्योंकि इस स्टेज पे उसका दिमाग कुछ कह रहा होता है, पेरेंट्स कुछ कह रहे होते हैं, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स सब अपनी अपनी ओपिनियन दे रहते हैं, और एक कंफ्यूज्ड स्टेज होता है. unless there are very limited number of students who are very clear about the conventional career options that they have. तो इस पॉइंट पे ये बहुत जरूरी है कि ये कन्वर्जन्स ऑफ थॉट लाया जाए
क्या बच्चा क्या चाहता है, पेरेंट्स क्या चाहते हैं और उसके लिए क्या अच्छा है, उसको एक्सप्लोर करके ये देखा जाए कि आगे बढ़ने के लिए उसके लिए कौन सा कोर्स या कौन सी यूनिवर्सिटी बेस्ट रहेगी। जो कोर्सेज अवेलेबल हैं, इंजीनियरिंग है, आर्किटेक्चर, डिज़ाइन, लॉ, अप्लाइड साइंसेज, बिजनेस मैनेजमेंट, बिहेवियरल साइंसेज, सोशल साइंसेज, इकोनॉमिक्स, इसको मैंने अगले वाले स्लाइड्स में डिटेल में बताया है कि कौन कौन से पॉपुलर कोर्सेज हैं जो बच्चे चूज करते हैं। इंजीनियरिंग, एज आई सेड, इज द मोस्ट पॉपुलर कोर्स ऑफ द कंट्री। इसमें 2 साल पहले तक अराउंड 17-18 लाख बच्चे इसमें जेई का एग्जाम देते थे और इस कोर्स के लिए एस्पायर करते थे। रिसेंटली यहाँ पर एक नोशन आया है या एक थॉट इवॉल्व हुआ है कि विद द पैसेज ऑफ टाइम इंजीनियरिंग इज नो लॉन्गर अ ल्यूक्रेटिव प्रोफेशन एंड पीपल आर नॉट ऑप्टिंग फॉर नॉन मेडिकल एज अ सब्जेक्ट। इसका आई डू नॉट एग्री विद दिस थॉट, क्योंकि ऐसा नहीं है कि इंजीनियरिंग के लिए डिमांड कम हुई है। द फैक्ट इज दैट इंजीनियरिंग की पॉलिफरेशन इन टर्म्स ऑफ द यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस इतनी ज्यादा हो गई है कि द क्वालिटी हैज बीन कॉम्प्रोमाइज्ड एट सम प्लेसेस, और जिन कॉलेजेस और इंस्टीट्यूशंस में क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज्ड है वहाँ के बच्चों को जब जॉब नहीं मिलता तो मार्केट में परसेप्शन ये जाता है कि ये कोर्स खराब है। इनफैक्ट अगर मैं बोलूँ तो हमारी इकोनॉमी, इनफैक्ट वर्ल्ड की किसी भी पार्ट के किसी भी कंट्री की इकोनॉमी इस प्रोफेशन या इस डिग्री या इस स्ट्रीम के ऊपर डिपेंडेंट है, बिकॉज टेक्नोलॉजी इज द बैकबोन ऑफ एनी कंट्रीज ग्रोथ। और इंजीनियरिंग करने के लिए जो ज़रूरी है, हम लोग एक ऑल इंडिया टेस्ट होता है जेई के नाम से, जिसमें बच्चे बैठते हैं और उसकी रैंकिंग के हिसाब से बच्चों को IITs आर दी मोस्ट एस्पायर्ड और सॉट आफ्टर इंस्टीट्यूशन जिसके लिए बच्चे तैयारी करते हैं। बट द सॉरी स्टेट ऑफ अफेयर्स इज कि 99% से भी ज़्यादा बच्चे जो इन एग्ज़ाम्स में बैठते हैं वो IIT के एग्ज़ाम को क्लियर करके IIT में एडमिशन्स नहीं ले पाते हैं। द रीज़न इज़ नॉट दैट दी स्टूडेंट्स आर नॉट केपेबल और दे हैव नॉट वर्कड हार्ड। रीज़न ये है कि द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स विच आर अप्लाइंग फॉर दिस कोर्स इज़ वेरी वेरी हाई एंड द नंबर ऑफ सीट्स विच आर अवेलेबल आर वेरी वेरी लेस। जैसे अगर मैं बात करूं, लास्ट ईयर अराउंड 13 लाख बच्चों ने जेई का एग्जाम दिया था और हमारे पास IIT, NIITs और टॉप गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन अगर हम कॉलेजेस को जोड़ ले तो वी हैव अराउंड 25 टू मैक्सिमम 30,000 सीट्स। तो 13 लाख बच्चे अगर 30,000 सीट के लिए compete करते हैं तो it is going to get very difficult for them to get through these exams and come out victorious. But unfortunately, during their training or preparation for this engineering exam, क्या होता है, बच्चों को ये बता दिया जाता है या ये माइंड में उनके थॉट आता है कि if we are not doing from IIT, then we do not have any future in non-medical or engineering, which is not correct. If doing an engineering program from any of the reputed institutes which are running the latest technological, latest courses, you have very equally good chances of being absorbed in the industry at very good packages. I'll just run through the names of the various streams that we have in engineering. Computer science and IT, information technology, दोनों allied है, sister branches हैं, and these are the most sought after branches. Then we have civil engineering. This is related to the construction industry. Mechanical engineering. This is related to the production industries and the process oriented industries. Electrical is related to the electricity, the power generation, distribution. Electronics and communication engineering. This is again a very good branch. This is basically जितने भी आप robots देखते हैं, automation देखते हैं, networking, ये सब electronics and communication engineering है इसके पीछे. It is a blend of basically computer, mechanical and electric. मतलब hardware and software को जब हम blend कर देते हैं तो हम उसको electronics and communication engineering बोलते हैं. IT is similar to the computer science, but more it changes rapidly as compared to the computer science.
biotechnology is an integration of biology and technology. Aeronautics is again, if you're looking for this kind of branch, ये बहुत कम institutions में होती है, but जो लोग इसमें जाते हैं और job secure मिल जाती है, तो they get very good packages. The number of openings are less in this, but if you get an opening, then it is very good. Automobile again is one of the branches. Chemical engineering related to all the chemical processes that take place. Robotic engineering has emerged as a different branch, but basically it is a part of electronics and communication branch. और जो recently एक और engineering उभर के आई है जिसमें हम BSc भी करवाते हैं, BSc एग्रीकल्चर कोर्सेज, वो है एग्रीकल्चर, जिसमें हम लोग आजकल हॉर्टिकल्चर, हाइड्रोफोनिक्स और इन सब टेक्नोलॉजीज की बात करते हैं. टेक्सटाइल इंजीनियरिंग इज अगेन वन ऑफ द ओल्डेस्ट ब्रांचेस, but again being provided by only a number of institutions. So this is just an overview of the various branches. Now if I come to the Pooja ji, can I ask you a question here? I think as a parent, सबसे बड़ा कंसर्न सभी पेरेंट्स का ये होता है जो अपने बच्चों को IIT की प्रिपरेशन करवा रहे होते हैं. So with this session, I would like you to break the myth that IIT is not the only option. And basically all the other engineering packages जो engineering colleges हैं, अगर आप अपना basic learning उनसे करते हैं, तो then those are equally good options. तो प्लीज उस पे भी थोड़ा सा elaborate करें before we go to the medicine. I'll just take up that question as well. देखिए ये fact है, IITs are the premier institute in the country, and the students who are studying in IITs are not only sought after in our own country, but they are even sought after in countries like America, Europe. Silicon Valley IITian से भरी हुई है, but प्रॉब्लम ये है कि जो ये रेस है, ये रेस बहुत अनरीजनेबल है. कहीं ना कहीं हम जो चीज एस्पायर करते हैं, ड्रीम करते हैं, हम बच्चे पे इतना प्रेशर डालते हैं कि तुम्हें इस रेस में बाहर निकलना है, मतलब विक्टोरियस होना है. बट 13 लाख बच्चे बैठ रहे हैं और 30,000 सीट है, तो ये कहीं भी नहीं है कि वो जो बच्चे क्लियर नहीं कर रहे हैं 12,70,000, वो किसी भी तरीके से इंटेलिजेंस में, मेहनत में कम है. सारे जैसे बिट्स पिलानी इज इक्वली गुड एज IIT. बहुत सारी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं साउथ की यहाँ पर जो कोर्सेज को रन कर रहे हैं. बहुत सारे प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं, मैं नाम नहीं ले रही हूँ, बट दे आर देयर बिकॉज किसी एक का छूट गया तो फिर वो थोड़ा सा ऐसे बायस्ड लगता है. बट येस, दे आर लॉट ऑफ यूनिवर्सिटीज विच आर डूइंग वेरी गुड वर्क. सिर्फ एक फर्क जो मैं कहूँगी IITs और दूसरे इंस्टीट्यूशंस में है, वो जब होता है कि जो एग्जिट पैकेज है IITian का वो ज्यादा होता है, बिकॉज जो कंपनी हायर करती है वो Tier 1 लेवल पे हायर करती है, और जो दूसरे इंस्टीट्यूशंस में हायर होते हैं Tier 2 पे इनफैक्ट होते हैं, और जो दूसरे इंस्टीट्यूशंस हैं वो नीचे थोड़े से टियर पे हायर होते हैं, तो पैकेज का फर्क होता है. मैं इनफैक्ट अपने कॉलेज के बच्चों को तो एक रास्ता बताती हूँ कि आप IITian से आगे कैसे निकल सकते हैं इस रेस में, क्योंकि व्हाट मैटर्स इज द एंड रिजल्ट. मैं कहती हूँ आप यहाँ से इंजीनियरिंग करें, अपना BTech करें, एंड मास्टर्स प्रोग्राम इज अ वेरी गुड, इज वेरी गुड इफ यू गो एंड परस्यू अ मास्टर्स फ्रॉम अ फॉरेन लैंड लाइक अमेरिका. अगर अमेरिका से जाकर अपना MS करते हैं तो आपकी कॉस्टिंग बहुत कम होती है, और वहां जाने के बाद मास्टर्स इज बेसिकली रिसर्च, एंड रिसर्च के लिए वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड रिसर्च लैब्स बहुत अच्छी हैं. तो थीसिस वगैरह बच्चे लिखते हैं वो बहुत अच्छी होती है. द क्वालिटी ऑफ रिसर्च इज गुड आउट देयर. तो मिनिमम जो बच्चा अपना MS करके निकलता है वहां से, वो $100,000 के पैकेज पे निकलता है, विच इज इफ वी से कि अब तो $76-78 के आसपास है. तो मैं बात करूं तो 75 लाख रुपया सालाना. और अगर एक IITian यहाँ से निकलता है, मैं अगर उसको बहुत अच्छा पैकेज भी अगर सोचूं कि वो लेता है, तो वो 15 से 18 लाख पे निकलता है. और साल का अगर मैं उसका इंक्रीमेंट भी जोड़ती हूँ एट द रेट ऑफ 10%, तो those students will be able to reach, those students will be able to reach somewhere around 20 lakh or 25 lakh. तो अगर आपको इस रेस में आगे निकलना है तो आपको अपनी मास्टर्स डिग्री बाहर से करनी चाहिए, और मास्टर्स प्रोग्राम कंपैरेटिवली बहुत सस्ते हैं.
मास्टर्स अब्रॉड से क्रैक करना बहुत इजी होता है। Okay. हेलो। हेलो, हाँ जी। हाँ आई जी। थिंक दैट्स अ ग्रेट ग्रेट टिप। और मुझे लगता है कि दिस विल कन्विंस लॉट ऑफ पेरेंट्स नॉट टू गेट टू डिसहार्टेंड जब उनके बच्चों का आईआईटी में सिलेक्शन नहीं होता। नहीं एंड होता। ये जो थॉट है उनको एक नई दिशा दिखाने में बहुत मदद करेगी। थैंक यू सो मच। थैंक यू। शुड आई कंटिन्यू नाउ? हाँ जी, हाँ जी। जो दूसरी फील्ड है जो बहुत ज्यादा सॉट आफ्टर होती है वो है मेडिकल फील्ड। और मेडिकल में इसलिए अब तो जैसे कोविड आ गया तो इट हैज बिकम ऑल द मोर इम्पोर्टेंट कि मेडिसिन में पिछले 2-3 साल से बहुत ज्यादा रुझान है। बच्चे एमबीबीएस के लिए एम कर रहे हैं। और मेडिकल में भी वही प्रॉब्लम है जो आईआईटीज की प्रॉब्लम है या इंजीनियरिंग में प्रॉब्लम है। द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु आर टेकिंग दिस एग्जाम is again around 14 lakh a year, and the number of seats that are available in all the medical colleges, be it government, private, even the dental colleges, अगर हम जोड़ लें तो 70,000 के करीब है। तो the ratio is again very unreasonable। और बच्चों के लिए ये कंपटीशन बहुत ज्यादा है जो बच्चे क्रैक नहीं कर पाते हैं। ये नहीं है कि वो अच्छे नहीं है। और इसके लिए जो कॉमन एंट्रेंस एग्जाम होता है वो नीट के नाम से होता है। इसके अलावा एम्स अपना एग्जाम कराता है और एक दो और इंस्टीट्यूशंस हैं जो अपना एग्जाम सेपरेटली कराते हैं अगर आपको उन इंस्टीट्यूशंस में जाना होता है। बट मेडिकल इसलिए भी अच्छा कर रहा है क्योंकि मेडिकल में आजकल पैरामेडिकल जो स्ट्रीम्स आ रही हैं या अलाइड स्ट्रीम्स आ रही हैं वो भी बहुत अच्छा कर रही हैं। जैसे हम जानते हैं मेडिसिन एमबीबीएस है, डेंटल अगर करना है तो बीडीएस है। आयुर्वेदा इज ऑल्सो इमर्जिंग एज अ न्यू फील्ड, बीएएमएस। और इसी तरह होम्योपैथी पे भी बहुत लोग स्विच कर रहे हैं एज एन ऑल्टरनेट मेडिसिन। बीएचएमएस का कोर्स है। फार्मेसी इज अगेन अ वेरी गुड कोर्स जो आजकल बहुत डिमांड में चल रहा है। इसमें जैसे कोविड आया, ड्रग्स पे काम करते हैं, ड्रग्स कैसे रिएक्ट करती हैं, कैसे उनके इफेक्ट्स देखे जाते हैं, वो सारा रिसर्च फार्मेसी में करता है। इट्स अबाउट द केमिकल्स एंड द रिएक्शंस एंड हाउ इट इज डन ऑन द बॉडी। फिजियोथेरेपी आजकल बहुत प्रॉब्लम्स रहती हैं, मसल पुल, फ्रैक्चर्स, इसमें फिजियोथेरेपी इज ऑल्सो इमर्जिंग। बायोटेक्नोलॉजी अगेन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ एन इंजीनियरिंग एंड द मेडिसिन। इसके अलावा बीएससी के जो कोर्सेज करते हैं उसमें अलग अलग ब्रांचेस को मेजर्स की तरह करते हैं, बॉटनी, जियोलॉजी, नर्सिंग, रेडियोग्राफी। एंड साइकाइट्री इज ऑल्सो इमर्जिंग एज अ वेरी मतलब बिग फील्ड नाउ डेज। और जो एनिमल्स के लेकर जो हम कहते हैं वेटनरी डॉक्टर्स, अगेन वो एक फील्ड है। तो मेडिसिन अगेन हैज अ लॉट ऑफ स्कोप। इसके अलावा जो दूसरे और कोर्सेज हैं वो है कॉमर्स। कॉमर्स इज मतलब कुछ सालों तक पहले कॉमर्स में हमारे को बेसिकली मिलते हैं मैनेजर्स, दी विच इज अगेन द बैकबोन। किसी भी इंस्टीट्यूशन को, ऑर्गेनाइजेशन को चलने के लिए एक अच्छे मैनेजर की जरूरत होती है। सो इसमें जो अंडर ग्रेजुएट लेवल पे कोर्सेज होते हैं वो होते हैं बीए, बीबीए और बीकॉम। इसमें बट वेरिएशंस बहुत आते हैं। इसमें वेरिएशंस में लोग ऑनर्स कर लेते हैं, जैसे इको ऑनर्स कर लिया मैंने अकाउंटेंसी ऑनर्स कर लिया, तो दैट हेल्प्स मीन स्पेशलाइजिंग इन वन पर्टिकुलर फील्ड। और उसकी वजह से मैं उसमें अच्छी जॉब ले सकती हूँ। और बीबीए जब लोग करते हैं इसमें जैसे कंप्यूटर एक एडिशनल सब्जेक्ट ले लेते हैं। इसके साथ आजकल जो अपकमिंग एक कोर्स है वो है एलएलबी। एलएलबी पहले 3 साल का जनरली अंडर ग्रेजुएशन होता था और 3 साल का एलएलबी प्रोग्राम होता था, तो आप डबल बैचलर्स एक्वायर करते थे। बट आज की डेट में 1 साल बचाने के लिए क्लैट नाम से एक एंट्रेंस होता है और इसमें आप 5 साल में एलएलबी कर लेते हैं। और इसके लिए नेशनल लॉ कॉलेजेस हैं जिसमें बच्चे एस्पायर करते जाने के लिए। और पिछले 2-3 साल में इस साइड भी रुझान बढ़ा है और बच्चे इस कोर्स को अप्लाई करें, बिकॉज नंबर ऑफ लिटिगेशन हैज बीन गोइंग अप इन द रीसेंट ईयर्स। कोर्ट्स में और सूट्स फाइल करने में, ड्राफ्टिंग में बहुत से लोग लीगल पैनल्स पे लोग ऑर्गेनाइजेशन पैनल पे अपने लीगल एक्सपर्ट्स को रखने लगे हैं। तो दिस इज ऑल्सो एन अपकमिंग स्ट्रीम नाउअडेज। बीसीए इज अगेन अ पार्ट ऑफ इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस का पार्ट है। इसमें साइंस को विद कंप्यूटर में मेजर कराकर आपको एक कॉम्बिनेशन दिया जाता है। और जो
हम कहते हैं ना, द कन्वेंशनल कोर्सेज जो बीकॉम के लिए है, कॉमर्स के लिए, वो हमेशा एक कॉम्पिटिटिव कोर्स जो हम कहते हैं चार्टर्ड अकाउंटेंसी है, जो अगर आप क्लियर करते हैं तो आप एक अकाउंटेंसी एक्सपर्ट है, ऐसी कंपनी सेक्रेटरी है, एनी कंपनी विच हैज अ मिनिमम नंबर ऑफ कैपिटल अगर जिनकी होती है और वो उसमें पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, दे आर रिक्वायर्ड टू कीप अ कंपनी सेक्रेटरी। और कॉस्ट अकाउंटेंसी का भी एक कोर्स है। और रिसेंटली कॉमर्स फील्ड में एक जो कोर्स उमड़ के आ रहा है वो है एक्चुअली का कोर्स, विच इज बेस्ड ऑन एंटायर स्टैटिस्टिक्स एंड प्रिडिक्शन ऑफ द फ्यूचर डेटा इन द कमिंग ईयर्स। और इसके अलावा बैचलर इन फॉरेन लैंग्वेजेस। लास्ट में आते हैं आर्ट्स। आर्ट्स भी इस टाइम पे बहुत अच्छी फील्ड हो गई है, क्योंकि आर्ट अगर हम बात करें लिटरेरी की, तो कंटेंट राइटिंग, एडिटिंग, क्रिटिक्स, रिव्यूज जो हम कहते हैं, टीचिंग है, ये सब फील्ड्स हैं जो इमर्ज हो आ रहे हैं। इसके अलावा आर्ट्स के साथ बच्चे विजुअल आर्ट्स के कोर्सेज करते हैं, जिसमें ग्राफिक डिजाइनिंग है, जिनके पास भी टैलेंट है ऑफ ड्राइंग, ऑफ क्रिएटिविटी, पेंटिंग, डिजाइनिंग, they would do very good in these fields, provided they take some specific course in that field, art. और बहुत से जो लोग पब्लिक सर्विसेज के लिए एम करते हैं, जैसे यूपीएससी के एग्जाम है, इन सब एग्जाम्स के लिए भी बच्चे आर्ट्स के सब्जेक्ट्स को ऑप्ट करते हैं, बिकॉज हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, ये सब सब्जेक्ट्स उनको पढ़ने पड़ते हैं। These are again the name of the various courses. So I'm just skipping. I've covered mass communication, yes, mass media. ये भी बहुत कोर्स अच्छा कर रहा है, बिकॉज एज वी नो कि भाई मास मीडिया एंड द मास कम्युनिकेशन बहुत तेजी से उभरती हुई रिक्वायरमेंट है इस फील्ड में। और एक जो कोर्स अब चल रहा है नया कोर्स, वो है बिजनेस बैचलर्स इन इवेंट मैनेजमेंट। इवेंट को मैनेज करने के लिए भी लोगों को स्पेशलाइज्ड लोगों की जरूरत पड़ती है। तो ये जो है ये बेसिकली कन्वेंशनल करियर ऑप्शंस है जिनको लोग चूज करते आ रहे हैं एज पर दी ऑन द रिकमेंडेशंस, जो हम कहते हैं ना, पेरेंट्स के सजेशन, सीनियर्स के सजेशंस के। बट अभी रिसेंटली बहुत सारे ऐसे कोर्सेज आ रहे हैं जो डिजिटलाइजेशन की वजह से इमर्ज होकर आए हैं। ये जैसे मैंने बताया कि it is very striking to note कि 99% of the candidates do not get admission in medical colleges in India, and 99.2% of the students are not able to make it to the top IITs of the country. So which is very disheartening statistics अगर हम देखें तो। जिस तरीके से टेक्नोलॉजी का एडवांसमेंट हो रहा है, अगर हम इसको अपनाएंगे नहीं और इसके साथ नहीं चलेंगे तो we'll be left behind. So there are various different kind of courses which are being taught along with the conventional courses which are doing. अगर मैं इंजीनियरिंग की बात करूं तो इंजीनियरिंग के साथ अगर मैं कंप्यूटर साइंस कर रही हूँ, इलेक्ट्रॉनिक्स कर रही हूँ, तो उसके साथ कर देते हैं विद स्पेशलाइजेशन इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग में क्या होता है, हम मशीनों को इतना काबिल बना देते हैं कि वो डेटे को एनालाइज करके रिजल्ट्स को प्रोड्यूस कर सकती हैं। डेटा एनालिसिस इज इन हाईली डिमांड इन आवर-डेज बिकॉज डेटा इज अ कमोडिटी। अगर आपके पास डेटा है तो आपके पास पैसा है, जिसके पास डेटा है उसके पास सब कुछ है। तो उसकी एनालिसिस करके किसी भी प्रोडक्ट को, किसी भी प्रोसेस को, किसी भी बिजनेस को कैसे आगे लेके जाना है, पीछे लेके जाना है, इट्स ऑल अबाउट डेटा साइंसेस और डेटा एनालिसिस। एंड एथिकल हैकिंग इज वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। आजकल जो हम लोग हैकिंग बहुत ज्यादा होती है, तो for some good reasons also, when it is done on in an official manner, robotics, very soon in the coming years we'll see that robots have started replacing the mankind in the workforce, because robots are more efficient, tantrums कम हैं और results बहुत ज़्यादा हैं, अच्छे हैं। और repetitive processes में robotics already humans को replace करने लग गए हैं, which is going to be a challenge for the mankind in the coming years. अगर आपको वहाँ एक पिक्चर दिख रही है, ये दिस इज वन ऑफ द रोबोट विच हैज बीन क्रिएटेड इन आवर ओन कैंपस। वी आर डूइंग लॉट ऑफ रिसर्च इन द फील्ड ऑफ रोबोट्स। इसका नाम इग्लू है। वी आर यूजिंग इट। इसमें 3-4 फीचर्स हैं। ये लिडार टेक्नोलॉजी से चलता है, अपना रास्ता देखता है, और इस तरीके से वी हैव क्रिएटेड अ डिफरेंट काइंड ऑफ रोबोट्स ऑल्सो इन द कैंपस।
Aerospace is again an upcoming specialized branch. Cyber security, डेटा इतना है, इंफॉर्मेशन इतनी है, उस इंफॉर्मेशन को कैसे बचाया जाए इज a subject of cyber security. And then physics and teaching physics is also इसमें research जो हो रही है बहुत जरूरी है और बहुत आगे है. Blockchain engineering is again one of the new streams which is a part of the engineering. This one slide I have just added to show the kind of robots that we are coming up. चाहे वो रेस्टो रोबोट है, चाहे वो पुलिस में हमने दिया है, हमने एक नैन्सी रोबोट बनाया है हॉस्पिटल्स के लिए, रेस्टोरेंट्स के लिए सर्विंग रोबोट्स बनाए हैं. एंड वी आर वर्किंग ऑन अ टेक्नोलॉजी लाइक अलेक्सा जो आपके सब सवालों के जवाब रोबोट दे सकता है, सेल्फी रोबोट है. सो दीज आर द वेरियस रोबोट्स दैट वी आर क्रिएटिंग राइट फ्रॉम डिजाइनिंग टू द प्रोडक्शन इन द कैंपस. ये बायो के जो मेडिकल के हैं जिनको हम कहते हैं पीसीबी कॉम्बिनेशन लेते हैं, ये उन बच्चों के लिए है. फिजियोथेरेपी इज एन एज आई हैव टोल्ड इज एन इमर्जिंग ब्रांच, बहुत ज्यादा जरूरी है. एक स्पोर्ट्स साइंस, जितने भी बच्चे स्पोर्ट्स करते हैं उनकी ट्रेनिंग के लिए और उनकी फिटनेस के लिए स्पोर्ट्स इज ऑल्सो साइंस इज एन इमर्जिंग फील्ड विच इज कमिंग अप. फूड एंड एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर में अगर हम ऑटोमेशन ले आते हैं और चीजों को इंटीग्रेट कर देते हैं so we can bring about a big revolution in food and agriculture. Environmental science and the sustainable development with the issues of the pollution and the degradation of the environment, ये एक साइंस इमर्ज होकर आ रही है. इंडिया में ये अभी इतनी नहीं पिक हुई है, बट फॉरेन कंट्रीज में ये एक प्रॉपर सब्जेक्ट की तरह कंसिडर करी जाती है और वहां पर पढ़ाई जाती है. रिसर्च साइंटिस्ट, रिसर्च का बहुत स्कोप है आने वाले टाइम में. With the changing the way the world is changing, research is very very important, but इसके लिए बहुत patience चाहिए इस field में जाने के लिए. Forensic science, the ecologists, the neuroinformatics is very very important. Cognitive neuroscience, जिसमें आजकल cognitive skill set हम लोग टेस्ट कराते हैं बच्चों की. अगर आपने देखा होगा 8th 9th में हम बच्चों को लेके जाते हैं काउंसलर्स के पास, उनके एप्टीट्यूड टेस्ट होते हैं एंड देन दे टेल यू कि भाई आगे जाकर आपका बच्चे के कॉग्निटिव स्किल्स क्या है, वो क्या क्रिएटिव है या उसकी एनालिटिकल थिंकिंग ज्यादा है, इसको ये ब्रांच दिलाना चाहिए. तो दिस इज ऑल्सो इमर्जिंग साइंसेस. एंड वेटनरी एंड एनिमल हस्बेंड्री और नेचुरोपैथी और योगा आने वाले टाइम में एक बहुत बड़ी फील्ड बन के उभरने आने वाली है. वैसे ही योगा इस टाइम पे इज बिकम द मोस्ट क्या फैग कहेंगे जिसे हम कहते हैं ना, फैग ऑफ द वर्ल्ड. रिलेटेड ब्रांचेस हैं. इकोनॉमिस्ट बन सकते हैं. रिस्क मैनेजमेंट एनालिसिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप कोई भी बिजनेस प्रोपोजिशन लाते हैं उसमें क्या रिस्क है, आप रिस्क को कैसे मिनिमाइज करेंगे और प्रॉफिट को कैसे मैक्सिमाइज करेंगे विद अवेलेबल रिसोर्सेज. इसके लिए सारे प्रोफेशनल्स क्रिएट करे जाते हैं जो डेटा के साथ एनालिसिस करते हैं और रिजल्ट्स को जनरेट करते हैं. बजट एनालिसिस, एक्चुरियल मैंने बताया, इसकी hiring, actuarials are paid very well. If you have done the course in actuarial sciences, it is a very paying profession and the hiring goes mostly in the banking sector and the insurance sector. Because अगर आज हम कुछ प्रीमियम दे रहे हैं, आने वाले 10 साल में अगर मेरे को कोई क्लेम देना पड़ जाए तो क्या मुझे देना पड़ेगा, कंपनी का क्या लॉस होगा, प्रॉफिट होगा. Actuarial science is basically a predictive science which we can say. CA, CS, CMA is again the conventional courses which are running. Tax consultancy, GST आने से tax consultancy, और वैसे भी tax की इतनी variations है, it has become very important to have specialized people handling your taxation segment. The corporate strategist, the wealth management, बहुत से जो affluent families हैं, they have these wealth managers. Even the banks are providing this services, जिसमें वो लोग आपको बताते हैं आपके पास अगर पैसा है उसको कैसे और कहाँ इन्वेस्ट करा जाए जो रखे पैसा भी आपको अच्छा रिटर्न दे. Again, then the private equity and venture capital. Venture capitalist is again a very big thing. जितने भी आजकल स्टार्टअप्स आ रहे हैं उसमें जो इन्वेस्टमेंट्स करते हैं वेंचर कैपिटलिस्ट और एंजल इन्वेस्टर्स करते हैं. इसके अलावा जो आर्ट्स की फील्ड है इसमें सोशल मीडिया मैनेजमेंट बहुत ज्यादा सॉट आफ्टर है, क्योंकि सोशल मीडिया डिजिटलाइजेशन होने से ये फेसबुक है, इंस्टा है, यूट्यूब है, अभी क्या कहते हैं टिकटॉक बहुत ज्यादा चल रहा है. दीज प्लेटफॉर्म्स हैव बिकम वेरी प्रोमिनेंट एंड इसकी मैनेजमेंट के लिए यू गेट द एक्सपर्ट सर्विसेज. फैशन स्टाइलिंग, पर्सनल स्टाइलिंग अगेन इज एन इमर्जिंग फील्ड जिसमें क्रिएटिविटी है,
वो बच्चे इन कोर्सेज के लिए ऑप्ट कर सकते हैं. होटल एंड हॉस्पिटल मैनेजमेंट. Hospital management is again a different field than the hotel management. Catering is again a part of the hotel industry, but it has come up as a separate profession also. Travel and tourism, fashion designing, interior designing, communication designing, culinary arts, journalism, एनिमेशन, और जो एक बहुत इमर्ज होकर आया है पिछले 3-4 साल में, वो है एक इवेंट मैनेजमेंट का काम, क्योंकि हर इवेंट को मैनेज करने के लिए नाउअडेज यू रिक्वायर प्रोफेशनल्स. रिटेल एंड फैशन, टीचिंग. सो आर्ट्स में अगर आपका क्रिएटिव एस्पेक्ट ज्यादा है और आप कुछ एक भी पर्टिकुलर चीज को इनमें से मास्टर कर लेते हैं, तो आपके लिए ये बहुत अच्छे ऑप्शंस साबित हो सकते हैं. जैसे किसी को फोटोग्राफी का शौक है, तो वो फोटोग्राफी के साथ साथ ट्रैवल ब्लॉगर बन सकता है, ब्लॉग्स लिख सकता है, अपना यूट्यूब चैनल क्रिएट करके उसके ऊपर अपनी जो भी वो खींचता है पिक्चर्स वो डाल सकता है. ग्राफिक डिजाइनिंग, लिटरेरी आर्ट, टेक्सटाइल डिजाइनिंग, स्कल्पचर, एक्टिंग, एंकरिंग, ऑल दीज थिंग्स, ज्वेलरी डिजाइनिंग, आर्टिस्टिक, सब में बहुत स्कोप है इस टाइम पे, अगर आप किसी भी चीज को अपने पैशन के साथ परस्यू करते हैं. इसके अलावा जो हमारे यहाँ बच्चों को शौक रहता है वो होता है आर्म्ड फोर्सेस को ज्वाइन करने का. अगर आप 12th के बाद आर्म्ड फोर्सेस में जाना चाहते हैं तो आपको एनडीए और एनए का टेस्ट देना होता है. अगर आप नेवी और एयरफोर्स में जाना चाहते हैं तो आपके पास फिजिक्स और मैथ्स होना कंपल्सरी है. आर्मी में जाना चाहते हैं तो इतना जरूरी नहीं है, आप इसके बिना भी आर्मी में एंट्री ले सकते हैं. और अगर आप अपनी मतलब ग्रेजुएशन के बाद जाना चाहते हैं तो इसमें सर्विस सिलेक्शन बोर्ड होता है. इसका कंप्लीट अलग एग्जाम होता है जो एयरफोर्स, नेवी, आर्मी ये लोग अपने एग्जाम्स कराते हैं, और इसमें बहुत से बच्चे बैठते हैं और इनका अपना एक सेट क्राइटेरिया होता है जिसमें ये बिहेवियर भी उस बच्चे की इंडिविजुअल पर्सनालिटी को, उसके एक एप्टीट्यूड को, इन सब पैरामीटर्स को चेक करते हैं. फिजिकल again is a very important the criteria for clearing this exam, the medical exam जो हम बोलते हैं, मेडिकल होना. इसके अलावा आप आर्म फोर्सेस में अगर नहीं जाना चाहते तो मर्चेंट नेवी में भी बहुत स्कोप है जिसमें आप जा सकते हैं. मैरीटाइम एजुकेशन अकेडमीज हैं, ये आपको साउथ की तरफ ज्यादा मिलती हैं बिकॉज वहां पर इनके बिकॉज ऑफ द अवेलेबिलिटी ऑफ पोर्ट्स, तो वहां पर ये कोर्सेज ज्यादा चलते हैं. This is all. So there are a lot of options. All that is required is कि आपका पैशन कहाँ लाई करता है. आपका पैशन जहाँ लाई करता है वो पैशन आपको आसान रास्ता लेने के लिए तो नहीं बोल रहा, क्योंकि जो कुछ प्रोफेशंस है या कुछ कोर्सेज हैं वो बहुत अट्रैक्टिव और ल्यूक्रेटिव और इजी हैं, बट आगे जाकर जब आप कोर्स करके निकलते हैं आप रियलाइज करते हैं कि उसकी उतनी वैल्यू नहीं है और कंपटीशन वहां बहुत ज्यादा है, तो आपको अपने सर्वाइवल के लिए स्ट्रगल बहुत करना पड़ेगा. तो पर्पस होना चाहिए, पैशन होना चाहिए, पॉसिबिलिटीज, and then the power to empower or come out victorious. These are the 4 P's which I've just summarized. And choose today to start believing in the magical power of wishing, hoping, and dreaming. This is all. Thank you. थैंक यू सो मच पूजा जी. आई थिंक जो इन्फॉर्मेशन आपने शेयर करी है इतनी एक्सटेंसिव है कि थोड़ा वक्त लगेगा उसको सेटल डाउन. I just wanted to finish it up. The pace was okay, but still. So I'm sure like जितने भी हमारे viewers हैं वो भी, उनके मन में भी बहुत सारे questions होंगे. तो we would quickly go through few of the questions. जैसे सबसे पहले जो क्वेश्चन मेरे माइंड में रेज होता है कि ये जितने भी करियर ऑप्शंस आपने बताए, इसके अंदर में हमारे इंडिया में जो डिफरेंट बोर्ड्स हैं, द राजस्थान बोर्ड या जो भी स्टेट बोर्ड्स, सेंट्रल बोर्ड, देन इंटरनेशनल बोर्ड, इन बोर्ड से हमारे 12th करियर जो सब्जेक्ट्स चूज करने हैं हमने, उसके ऊपर में क्या फर्क पड़ता है, विच इज कन्वीनियंट, नॉट सो कन्वीनियंट, तो उसके ऊपर थोड़ा सा. देखिए, इंडिया में 4 तरह के बोर्ड्स चलते हैं. जो सबसे ज्यादा चलता है सीबीएसई बोर्ड है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, एंड इट इज द मोस्ट पॉपुलर एंड मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स टेक एडमिशन इन दिस बोर्ड ओनली. हाँ जी.
इसके अलावा एक इसी का जो हम कह सकते हैं एक पैरेलल बोर्ड चलता है, वो है आईसीएसई बोर्ड। बट द परसेप्शन वो कंपेयर रिलेटिवली कम चलता है, बिकॉज वो है तो वैसे इंग्लैंड सिस्टम पे बेस्ड है और बना हुआ है, बट समहाउ एक उसको लेकर परसेप्शन है कि आईसीएसई बोर्ड इज अ बिट टफर बोर्ड एज कम्पेयर टू सीबीएसई बोर्ड। तो बहुत से स्कूल्स उस बोर्ड को ऑप्ट नहीं करते हैं। इसके अलावा जो तीसरा जो सबसे ज्यादा बोर्ड्स चलते हैं वो है कि हर स्टेट का अपना एक बोर्ड है। जैसे राजस्थान का अपना एक बोर्ड है जो स्टेट गवर्नमेंट होती है। ये बोर्ड इसलिए क्रिएट करे गए हैं क्योंकि बहुत से, जैसे हम गवर्नमेंट स्कूल्स की बात करें, रूरल एरियाज की बात करें, सेमी रूरल एरियाज की बात करें, वहां पे प्रॉब्लम क्या है कि वहां पर बच्चा इंग्लिश नहीं जानता है। तो जो बेसिक सब्जेक्ट्स हैं 12th तक के, उनकी लैंग्वेज में सिखाने के लिए, लोकल डायलेक्ट वाले में सिखाने के लिए, जैसे राजस्थान में हिंदी में पढ़ाते हैं राजस्थान बोर्ड में, और वो जिससे नॉलेज भी ले सके और एक लेवल तक पहुंच सके, ये स्टेट बोर्ड्स हैं। तो एवरी स्टेट हैज देयर ओन बोर्ड। और जो रिसेंटली इंडिया में पिछले 10-12 साल से इमर्ज होके आया है वो है आईबी बोर्ड, विच इज एन इंटरनेशनल बकालॉरेट बोर्ड। इसमें है कि जो भी बच्चा बाहर जाके पढ़ना चाहता है और फॉरेन में एजुकेशन लेना चाहता है, उनको प्रिपेयर करा जाता है as per the style and the system of education which is there in their country. ये चारों बोर्ड्स अलग अलग हैं। ये डिपेंड करता है बच्चा आगे जाकर क्या ऑप्ट करना चाहता है, क्या चाहता है। आप सीबीएसई बोर्ड के थ्रू कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम इंडिया में दे सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आप आईसीएसई बोर्ड के थ्रू दे सकते हैं, स्टेट बोर्ड्स के थ्रू दे सकते हैं, कहीं नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। आईबी बोर्ड से आप मेडिकल का एग्जाम दे सकते हैं, बट आई थिंक यू आर नॉट एलिजिबल फॉर जेई, बिकॉज उसमें एक प्रॉब्लम है। ये लोग फिजिक्स एंड मैथ्स इज मैंडेटरी केस यू आर टेकिंग अ नॉन मेडिकल, एंड फिजिक्स एंड बायो इज मैंडेटरी इफ यू आर टेकिंग अ मेडिकल सब्जेक्ट। तो एलिमिनेट नहीं कर सकते। तो अगर बच्चे ने ये सब्जेक्ट नहीं लिया होगा तो वो आगे उस कॉम्पिटिशन में नहीं बैठ पाएगा। अच्छा, लेकिन इन सभी बोर्ड्स चारों, चाहे राजस्थान बोर्ड है, चाहे सीबीएसई बोर्ड या आईबी बोर्ड, उनके जो मार्क्स का कैलकुलेशन है वो सेम बेसिस पे किया जाता है फॉर एडमिशंस टू एनी कॉलेज, या कोई डिफरेंशिएट करते हैं? तो ये है कि किसी भी जगह आपको अगर लेना है, तो मैंने जैसे बताया इंजीनियरिंग के लिए जेई का एग्जाम, हाँ, आप जब वो एग्जाम क्लियर करेंगे, जेई में बहुत मुश्किल है इवैल्यूएट करना। आई विल बी वेरी ऑनेस्ट। परसेंटाइल सिस्टम से इवैल्यूएशन होता है, और वो परसेंटाइल का भी जो कैलकुलेशन जाता है वो पॉइंट के बाद 7 डिजिट तक जाता है। इतना कम डिफरेंस होता है बच्चों के मार्क्स में और परफॉर्मेंस में। सो वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो बच्चा ले रहा है वो डिसाइडिंग फैक्टर होता है बेसिकली। और उसके अलावा जो ये आगे आप एडमिशंस लेते हैं, इसमें कट ऑफ होता है। जैसे किसी में 75% का कट ऑफ है, किसी में 50% का कट ऑफ है। तो आपके पास कट ऑफ होना चाहिए और उस कॉम्पिटिटिव एग्जाम की रैंकिंग होनी चाहिए। उन दोनों को मिलाकर देन यू गेट द एडमिशंस फर्दर ऑन। मैं इंडिया की बात जो कर रही हूँ। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इज कि ऑफ कोर्स, जैसे आपने शुरुआत में ही कहा कि आज बच्चों को अपने आप से बहुत एक्सपोजर है ऑफ डिफरेंट सब्जेक्ट्स एंड चॉइसेस अवेलेबल, बट पेरेंट्स उतना शायद अवेयर नहीं होते। तो हमेशा एक पेरेंट्स और बच्चों के बीच में टिफ रहता है, बिकॉज पेरेंट्स सोचते हैं कन्वेंशनल जो चॉइसेस हैं वो सेफर चॉइसेस हैं। तो एक बार पेरेंट्स के लिए थोड़ी सी आप अगर हमें कुछ गाइडलाइंस दे पाए कि हाउ दे शुड प्रिपेयर देमसेल्व्स। ये बड़ा मुश्किल सवाल है आज के टाइम में, पर मैं ये मानती हूँ कि पेरेंट्स आर द पीपल हु नो द बेस्ट फॉर द चाइल्ड, क्योंकि उनके साथ एक्सपीरियंस है, मैच्योरिटी है, उनको पता है कि मेरे बच्चे के लिए क्या अच्छा है, और इसीलिए वो कन्वेंशनल कोर्सेज को प्रेफर करते हैं। But with the proliferation of the information in the form of internet, counselors, बच्चों को आजकल बहुत सारे ऐसे कोर्सेज एल्योर करते हैं जो अट्रैक्टिव हैं, ग्लैमर हैं, इजी हैं। पीयर क्योंकि कर रहा है तो मुझे करना है। तो उस केस में कॉन्फ्लिक्ट रेज होता है पेरेंट की सोच में और बच्चे की सोच में। उस केस में 2 इश्यूज हैं। बहुत बारी ये हो सकता है कि बच्चा जो कह रहा है वो सही है, बिल्कुल, बट पेरेंट्स को वो उस केस में उसको एक्सप्लोर करना चाहिए कि अगर बच्चा कह रहा है कि मुझे फैशन डिजाइनिंग में जाना है, तो मुझे ये बात समझ आनी चाहिए कि अपने बच्चे को देखकर कि भाई हाँ, ये बच्चा
इतना क्रिएटिव है, क्योंकि फैशन डिजाइनिंग इतनी कॉम्पिटिटिव है, उस कोर्स को करने के बाद अगर वो एक्सेल नहीं कर पाया तो वो प्रोफेशन की तरह नहीं आगे ले जा पाएगा। तो इसीलिए उसमें बच्चों के पास इंफॉर्मेशन ज्यादा है आज के टाइम में, इसके पास सेफ रास्ता है, क्योंकि जो कंजर्वेटिव कोर्सेज हैं उनका एक फायदा तो है कि आपको जॉब्स बहुत आसानी से मिलती हैं, ऑप्शन बहुत हैं, और फाइनेंशियल सिक्योरिटी आगे जाकर बहुत इजी है। और जो ये न्यूअर कोर्सेज जो हम बात कर रहे हैं या वेराइटी ऑफ कोर्सेज हैं, इसमें अपॉर्चुनिटीज हैं। जैसे अब रातों रात, अब देखिए आप जूम जैसा ऐप 50 मिलियन डाउनलोड्स आ गए बिकॉज ऑफ दिस लॉकडाउन। एक किसी का आइडिया था, कॉन्सेप्ट था, उसने एक प्लेटफॉर्म क्रिएट करा, उस प्लेटफॉर्म के थ्रू वो बिलियनर बन गया। तो ये बट ऐसे केसेस बहुत रेयर हैं और बीच में आते हैं। तो बच्चे के थॉट को एक्सप्लोर जरूर करना चाहिए, कर्व नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनके पास इंफॉर्मेशन का प्रोलिफरेशन ज्यादा है। बट बच्चे को भी ये समझना चाहिए कि अगर पेरेंट्स उसको एक्सप्लोर करने के बाद भी उस थॉट प्रोसेस से एग्री नहीं हो पा रहे हैं, तो दे शुड नॉट एक्चुअली गेट वेरी व्हाट यू कॉल स्ट्रिक्ट, और मतलब जिद्दी बोलते हैं ना हम, जैसे स्टबन, नो दिस इज व्हाट आई एम गोइंग टू डू। तो दे थिंक कि पेरेंट्स का एक्सपीरियंस जो है वो क्योंकि 18 साल की उम्र मैं मानती हूँ पर्सनली, दे आर नॉट दैट मैच्योर इनफ बिग डिसीजंस ऑफ लाइफ। और जब ये डिसीजन लिया जाता है, बोथ पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन, दे हैव टू कीप वन थिंग इन माइंड, इट इज नॉट ओनली द डिग्री, बियॉन्ड डिग्री दैट दे हैव टू सी। अगर पर्टिकुलर डिग्री लेती हूँ, उसके बाद मेरे पास क्या आगे पॉसिबिलिटीज हैं, चाहे वो बिजनेस की है, स्टार्टअप की है, जॉब की है, उन सबको, प्रोफेशन की है, और मेरे को क्या 10 साल बाद उससे गेन आएगा, या मैं कहाँ अपने आप को देखती हूँ, वो चीज बहुत मैटर करती है। So, इसी क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हुए, स्पेशली you and me being women and our platform 40 women, and like me being a doctor, I would say कि लड़कियों के लिए आपको कौन से करियर्स जो हैं या कौन से सब्जेक्ट्स लगते हैं जो शॉर्टर स्पैन में कंप्लीट हो पाए, जो उन्हें फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस के लिए जॉब्स दे सके एंड एट द सेम टाइम वो अपना घर भी संभाल सके? देखिए आज का टाइम तो मैं ये मानती हूँ दिस इज द गोल्डन एरा फॉर द गर्ल्स। हम लोग गर्ल एजुकेशन की बात करते हैं, गर्ल एम्पावरमेंट की बात करते हैं, और अगर हम लोग फैक्ट्स को उठाएंगे, फिगर्स को उठाएंगे, तो हम रियलाइज करेंगे किसी भी इंडस्ट्री में विमेन वर्कफोर्स इज मोर सॉट आफ्टर, बिकॉज डिसिप्लिन ज्यादा होती हैं, हार्ड वर्किंग होती हैं, सिंसियर है। तो इन कैरेक्टरिस्टिक्स की वजह से उनके साथ स्टेबिलिटी फैक्टर बहुत जरूरी है। इसीलिए बट आज मैं तो ये मानती हूँ विमेन चाहे डॉक्टर बने, चाहे टीचर बने, चाहे काउंसलर बने, चाहे किसी भी फील्ड में जाए, वो एक्सेल करेगी। पहले क्या प्रॉब्लम आती थी? प्रॉब्लम पहले कि आपने एजुकेशन ले ली बट आप उसको करियर की तरह परस्यू नहीं कर पा रहे हैं, बिकॉज आपको एक फैमिली कमिटमेंट से उनको पूरा करना है और आगे लेके जाना है। बट अब द फ्लेक्सिबिलिटी जो मिलने लगी है काम करने में, जैसे वर्क फ्रॉम होम है आजकल कोई भी चाहे, और उसमें इतनी वेरिएशंस आ गई हैं कंजर्वेटिव तरीके में काम करने में कि आजकल हम लोग घर बैठे बहुत सारी चीजें कर सकते हैं, थोड़ी दिनों का ब्रेक ले सकते हैं, महीने का ब्रेक लेकर फिर काम कर सकते हैं। तो कहीं भी हम लोग अगर बात करें, विमेन हैव एम्पल अपॉर्चुनिटीज। अगर मैं आज सॉफ्टवेयर इंजीनियर की बात करूं, अगर बच्ची की शादी हो जाती है 3 साल बाद जॉब करके, कंपनी सो फ्लेक्सिबल दैट इफ शी इज अ गुड एम्प्लॉय दे विल से ओके आप तो 6 महीने की हमारी तरफ से पेड लीव लो, कर लेना। वो कहती है मैं फिर भी ज्वाइन नहीं कर पाऊंगी, अच्छा ठीक है चिंता मत करो, वर्क फ्रॉम होम कर लेना, काम करके भेज देना। फ्लेक्सिबिलिटी विच इज अवेलेबल, जो सिर्फ विमेन जहां तक नहीं पहुंच पाती थी वो थी आर्म फोर्सेस में कमीशन नहीं हो पाती थी, अब तो वो भी होने लग गई हैं। तो अब वहां भी वो नहीं रहा। तो किसी भी फील्ड में आप तो गर्ल्स को उतारो, चाहे क्रिएटिव फील्ड्स में गर्ल्स आर डूइंग एग्जाम्पलरी वेल। आप आजकल देखो, आप फैशन इंडस्ट्री है, जेम्स एंड ज्वेलरी है, इंटीरियर डिजाइनर्स हैं, हर जगह लॉ में आप देख लें, लॉयर्स आजकल किसी भी फील्ड में चले जाएं आप, गर्ल्स ही गर्ल्स हैं। वेरी इनफैक्ट आई थिंक कि जैसे पहले हुआ करता था कि भी वो ब्रिलियंट वाली जो लड़कियां थी उनके लिए एक मेडिकल फील्ड ही रख दिया गया था कि दिस इज द ओनली थिंग दैट यू कैन डू।
जैसे मेरे साथ पढ़ाई में अच्छे थे तो माँ ने एक वो थॉट प्रोसेस डाल दिया कि डॉक्टर बनना है तो बस वो क्या पहले फैमिली में चलता है ना, तो वही सब आप इनवाइट करते जाते हो, उस थॉट प्रोसेस को ऑब्जॉर्व कर लेते हो। हाँ। अब सो नेक्स्ट ऑफ कोर्स लाइक आपने कहा कि इन टुडेज टाइम ईच एंड एवरी करियर ऑप्शन इज अ गुड ऑप्शन फॉर अ गर्ल चाइल्ड। तो नेक्स्ट अगेन मैं पूछना चाहूंगी कि आप हमें थोड़ा सा बताएं एजुकेशन इन इंडिया, लाइक अ ग्रेजुएशन इन इंडिया वर्सेस ग्रेजुएशन अब्रॉड, दोनों के थोड़े थोड़े से प्लसेस एंड माइनस। देखिए ये बहुत कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है कि इसमें बहुत एवरीवन हैज देयर ओन पर्सनल ओपिनियन। हाँ जी। अगर आप मेरे से पूछेंगे तो मैं अंडर ग्रेजुएट कोर्स इंडिया से प्रेफर करके पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स बाहर से रेकमेंड करूंगी। उसकी वजह ये है कि अंडर ग्रेजुएट जो कोर्स है उसमें आपको बच्चा थोड़ा सा इमेच्योर होता है, उसको इन्वॉल्वमेंट इन द फॉर्म ऑफ रेगुलर एंगेजमेंट बाय टीचर्स एंड द सराउंडिंग वो बहुत ज्यादा चाहिए होता है। उसमें सेल्फ डिसिप्लिन का फैक्टर इतनी अंडरस्टैंडिंग नहीं होती है, और द रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट अगर करा जाए तो अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम की बाहर से करने के बाद इतनी ज्यादा नहीं है जो पोस्ट ग्रेजुएट करने की है। और पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स एक रिसर्च ओरिएंटेड होता है, उसके बाद अगर आप जॉब करते हैं उसको बाहर से जाके करते हैं, वहाँ का एक्सपोजर लेके आते हैं, वहाँ की टेक्नोलॉजीज एंड बेस्ट ऑफ मशीन्स बेस्ट ऑफ माइंड ब्रेन्स के साथ आप इंटरेक्ट करते हैं, उसमें आपको किसी टीचर की इतनी इन्वॉल्वमेंट नहीं चाहिए। उसमें सेल्फ स्टडी, सेल्फ डिसिप्लिन, सेल्फ रिसर्च ज्यादा चलती है, तो वो बच्चे ज्यादा अच्छा कर पाते हैं। तो बट दिस वेरीज फ्रॉम इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल। इफ आई हैव द पेइंग कैपेसिटी एंड माई चाइल्ड इज पैशनेट अबाउट गोइंग अब्रॉड और उनकी अपब्रिंगिंग, उनकी स्कूलिंग उस तरह से हुई हुई है, तो आई वुड डेफिनेटली सेंड माई चाइल्ड अब्रॉड। और अगर मेरे को लगता है नहीं, आई वांट टू कीप द चाइल्ड क्लोजर टू मी and I want them to have, and I'll just send them abroad for the exposure and the learning. तो अपना अपना सोच है इसमें हर पेरेंट। But yes, I do agree that undergraduate courses in India are a lot more cheaper, lot more intensive, and ये होता है कि एक defined time period में आपने उसे complete करना है। I think है ना? एंड इंडिया में स्ट्रक्चर है थोड़ा सा इसमें, जैसे अगर आपको साइंसेस लेनी है तो आप उसमें आर्ट्स के सब्जेक्ट उठा के नहीं ले सकते या कॉमर्स का नहीं ले सकते। अगर आपको कॉमर्स लेना है तो आप उसमें साइंस का सब्जेक्ट नहीं लेंगे। तो द डिफरेंशिएशन ऑफ द सब्जेक्ट्स इज वेरी क्लियरली मेंशन। इसमें क्या होता है कि यू कैन टेक एनी सब्जेक्ट यू वांट। तो कॉकटेल मतलब एक बुफे लगा हुआ है सब्जेक्ट्स का, और मेरे को जो चीज खानी है वो मैं उठा रही हूँ प्लेटर में अपने, और उसका एक कॉकटेल बन गया। उसमें क्या प्रॉब्लम होती है, जब बच्चा थर्ड ईयर या फाइनल ईयर में पहुंचता है और मेजर करने की सोचता है, जैसे मैं एरोनॉटिक्स में करना चाहती हूँ, मेरे को लगा है ना, एस्ट्रोफिजिक्स में करना चाहती हूँ, बट मैंने अपना फिजिक्स एज अ मेन सब्जेक्ट लिया ही नहीं फर्स्ट ईयर में। तो फिर वो दिक्कत आती है कि मैं उस फील्ड में आगे नहीं बढ़ पाती हूँ, क्योंकि बच्चे को फर्स्ट ईयर में ये नहीं पता होता कि आगे जाकर मुझे क्या करना है। उसका माइंड बदलता है, चेंज होता है। इंटरनेट का प्रॉब्लम आ रहा है। I'm going closer to this thing. Okay. And next question इसी से related, आजकल बहुत सारी बातें हो रही हैं for skill development, and even the government is promoting lot of skill development courses. So instead of doing the undergraduate course like a BCom or a BSc, जिसके अंदर में वो बहुत डिफाइंड नहीं है, जैसे बहुत सारे जो स्किल डेवलपमेंट कोर्सेज अवेलेबल होते हैं, डज दैट मेक मोर सेंस कि आप वो स्किल डेवलपमेंट करें, या वो अलोंग विद डिग्री कोर्स आप करते चले वो बेहतर है? देखिए डिपेंड करता है, क्योंकि बहुत से बच्चे ग्रेजुएशन तक नहीं पहुंच पाते बिकॉज ऑफ द सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस। और ऐसे बच्चे जो 12th के बाद ड्रॉप आउट हो जाते हैं, 10th के बाद ड्रॉप आउट हो जाते हैं, उन बच्चों को एक कहते हैं ना एम्प्लॉयबिलिटी का साधन देने के लिए गवर्नमेंट ने ये स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स या वोकेशनल कोर्सेज शुरू करे हैं। बहुत सी स्किल यूनिवर्सिटीज भी अब आ रही हैं जो कहती हैं कि भैया हमारे को एक मैकेनिक बनाना है कार का, तो वो कार का एक्सपर्ट है, उसकी इंजन रिपेयर कर सकता है। इलेक्ट्रिशियन है तो वो उसकी एक्सपर्ट है, एयर कंडीशनर रिपेयर है। तो इन चीजों की जरूरत भी, वी नीड दिस काइंड ऑफ टेक्नीशियंस विद अस। एंड आई फील कि यस, अगर आपको एक पर्टिकुलर कोर्स वो देता है
एम्प्लॉयबिलिटी देता है, तो इट इज बेटर देन अ सिंपल बीएससी बीकॉम विच इज मेयर डिग्री. बट अगर उस डिग्री में, अब जैसे आप बड़े अच्छे कॉलेजेस से अगर आप बीएससी बीकॉम बीए भी करते हैं तो आपके पास प्रोस्पेक्ट्स बहुत हैं. तो इट डिपेंड्स फ्रॉम वेयर यू आर डूइंग एंड द काइंड ऑफ वैल्यू दैट कोर्स होल्ड्स फॉर यू इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल और द फ्यूचर एम्प्लॉयबिलिटी. तो स्किल ये क्या है कि कॉन्सेप्ट एक्चुअली फॉरेन कंट्रीज में बहुत चलता है. वहां पर जनरली बच्चे ड्रॉप आउट हो जाते हैं आफ्टर हायर एजुकेशन बिकॉज देन दे हैव टू फेंड फॉर देमसेल्व्स. उनको छोड़ देते हैं वहां पर. तो वो इस तरह के कोर्सेज करते रहते हैं और अपने आप को स्किल सेट ले आते हैं और कमाते रहते हैं, एम्प्लॉयबल हो. Like Australia and all में ये courses सब बहुत strong. Europe has this concept. Australia has this concept. All the countries abroad have these. Mostly have this. Have these concepts. Okay, so I think we are almost up with our time. But एक last question for just 2 sentences कि is there any facility हमारे यहाँ इंडिया में कि आपको undergrad courses के लिए loans कहीं से मिल पाते हैं क्या? Yes, loans मिलते हैं. Nationalized banks loans देते हैं, private banks loans देते हैं. And मुझे वैसे ज्यादा नहीं पता, but approximately around 3.5 to 4 lakhs. आजकल ये लक्ष्मी माँ लक्ष्मी स्कीम के थ्रू और इसके थ्रू बच्चों को मिलता है विदाउट एनी कोलैटरल, विच दे रीपे वंस दे गेट एम्प्लॉयड, वंस दे फिनिश देयर कोर्स. इसके अलावा 7 लाख का शायद देते हैं ये लोग गारंटर, अगर कोई वाउच कर देता है कि यस ये बच्चा आगे जाकर पे कर देगा. और अगर आपको ज्यादा चाहिए, बिकॉज अगर आप आगे जाकर मतलब यू आर स्टडिंग फ्रॉम अ वेरी हाई फाई यूनिवर्सिटी इन इंडिया और अब्रॉड, तो वहाँ की कॉस्टिंग ज्यादा 20-25 लाख तक आती है. तो आपको मिल जाते हैं, बट देन इट इज लाइक एनी अदर लोन. आपको उसके लिए कुछ ना कुछ सिक्योरिटी में रखना पड़ता है. Okay, thank you so much, so much, Pooja ji. I think this was an extremely informative session, especially I can say for myself. Thank you so much. आपने इतने patiently सुना. Time to speak out my heart. So thank you so much for having me, and it was a wonderful session interacting with you. Yeah, thanks so much. Hopefully, so we can hold another session जिसके अंदर में हम all different जो ये career choices आपने बताए हैं, especially the non-conventional ones. Digital platforms पे हम ले सकते हैं क्योंकि आजकल उसमें बहुत potential है. आज YouTube पे अगर आपके subscribers इतने हैं तो आप YouTube घर बैठे बैठे पैसा देता है. So a lot of digital platform, blogging आप कर सकते हैं, content writing आप कर सकते हैं, तो बहुत सारे we can talk about that. All the non-conventional careers. Thank you so much. Nice chatting with you. Yeah, same.